I mean reordering of the words to make a meaningful sentence. You must have studied this topic in class 10th as well, I think. Reordering of the words, or can say rearrangement of the words. Do you have some idea about this topic? Hmm? Do you have some ideas about the topic? Reordering of the words. Let me tell you something about it. It is also known as jumbled words. What do we call it? Jumbled words. And now you have to form a meaningful sentence by using these words appropriately. Hmm. Have you studied this topic in class 9th and 10th? Yes, sir. What Yes, do you sir. call it? What do you call the topic? Jumble words. Hmm? What do you call the sentence? Jumble words or Sir, something else? sentence reordering. Sentence reordering. Actually, there is a bit difference in sentence reordering and reordering of the words. For example, see if I say, what will you call this topic? If I write sentences like this and I ask you to make a meaningful paragraph out of these sentences. ये लो सेंटेंस एंड दीज आर जंबल सेंटेंसेस. कैसे जंबल्ड है? जंबल्ड है तो इनमें से आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है बाय सेटिंग ऑल दीज सेंटेंसेस इन अ सीक्वेंस. So this is called sentence rearrangement of
or reordering of the sentence. But what I was discussing that was reordering of the words और jumble words. क्या कहते हैं इसको? Jumble words. तो देखिए इसको जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए once upon a time in the dark wood I met a hermit. He was hungry and thirsty. अब ये मीनिंगफुल है या पहले मीनिंगफुल था? हाँ? Now it is meaningful or it was earlier meaningful? Tell me. So now. Now. So this topic is known as sentence reordering. क्या कहेंगे इसको? Sentence reordering. On the contrary to it, this topic is known as the reordering of the words or jumble words. क्या कहेंगे हम इसको? Jumble words. ठीक है, क्योंकि ये जम्बल्ड हो रखे हैं, बिखरे हुए हैं. अब हमें इन वर्ड्स को एप्रोप्रिएट प्लेस पर रख करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. जैसे मैंने एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाया था यहाँ पर, स्मॉल सा शॉर्ट सा, राइट. So in your class, in your examination, this topic will be asked, not this topic. But for your information, I have told this so that in future you may not call it sentence reordering. Alright, because sentence reordering is something else that is asked in NDA and CDS and SSC, like in competitive exams. Right? Now, how many of you can form a meaningful sentence out of the jumbled words? How many of you can form a meaningful sentence out of the jumbled words? So me. Do. You are welcome. That is what. That is what to be is decided. So that is what to be decided. No. Some other? That is decided what to be is. No. What is to be decided is that. No. और ट्राई करो. देखिए थोड़ा टफ था, मानता हूं. What is decided? That is to be. ये होगा, जो कुछ डिसाइड है ना वो होके ही रहेगा. राइट. जो नियति में लिखा हुआ है वो होना ही होना है, ये है इसका मतलब. सो इंट्रोडक्शन हो गया है. नाउ लेट अस सी some unsolved questions so that you may have a bit practice.
देखिए कुछ करके देखते हैं। Die many times, cowards before they are dead। बनाओ इसको। Cowards die many times before their death. वेरी गुड। cowards die, देखिए नाइस प्राची। die many times before their death। यानी कावर्ड्स जो है अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं। सारे वर्ड्स आ गए, डाई आ गया, मैनी आ गया, टाइम्स आ गया। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका देखो बेहतरीन क्या होता है, यहाँ वर्ड्स काउंट करो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ करो 1 2 3 4। अच्छा इसको मैंने अलग अलग गिन लिया, एक ही है ये, ठीक है। 2 3 4 5 and 6। 3 4 5 and then 6। अगर आपको आपका आंसर मैच करना है ना, आपको डाउट है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जो वर्ड्स गिन लो। क्या करेंगे, वर्ड्स गिनो और फिर यहाँ पर जो आपने सेंटेंस फॉर्म किया उसको देखो क्या वो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारी चीजें है या नहीं है। अगर कनेक्टर है तो कनेक्टर को सही प्लेस पर रखा गया है नहीं रखा गया है, और द वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, whether it is singular or plural, you have to find out each and everything। all right, there is no hard and fast rule to form a sentence in it, okay, because ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम ये कह सकते हैं कि बिना सिर पैर वाला टॉपिक है। इसका कोई ना तो सिर होता ना कोई पैर होता। like we teach tense, I teach you systematically from the definition of tense and then the pattern and structure, then types of tense, everything I teach, what is present, what is future, what is past, and what is continuous, what is perfect and what is imperfect, everything I teach while teaching tense। but this is the only topic in which only practice can do something, otherwise nothing is there that can help you। all right, so these are the few things that I have told you कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, देन आप क्या देखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब देखनी है, फिर देखो अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, फिर ओ डब्ल्यू है कि नहीं है, फिर ये देखना है क्या सेंटेंस यहीं खत्म हो रहा है या इसके बाद में आपके पास कंजंक्शन है, ठीक है। फिर देखो सब्जेक्ट है कि नहीं है, फिर वही वर्ब वाला पैटर्न चलता चला जाएगा। ये दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। Sir, यस, what's the meaning of OW? ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड्स। ऑलराइट, now let me show you some sentences so that you can do। I'm going to share my screen, okay।
Just wait a minute, it will take a minute only. Is it now visible? Yes. Yes, sir. Then make sentences. A, B, C, D. There are 4 sentences. Sir, B is not completely visible. What is not complete? B. Hmm? B is not complete. Let me check. Sir, it's not visible completely. Completely not Yeah, visible. it's now fine. Now it's fine. Done? No, sir. Then do it fast. Sir, the screen is not visible now. Screen is not visible. It will be visible. Just wait a minute. What do you say now? Visible or not?
डन और नॉट? हो गया नहीं हो गया? डन और नॉट? टेल मी, कितना टाइम लगाओगे? सर थर्ड और फोर्थ नहीं आ रहा। थर्ड और फोर्थ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड बताइए कैसे किया है आपने? सर फर्स्ट है, discipline is the very foundation of society. वेरी गुड, Yes, sir. डिसिप्लिन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, ग्रेट। नेक्स्ट, It is one of the essentials of life in all spheres and is of the great importance of life. आवाज ही कट रही है आपकी, ठीक से बोलो, दोबारा बोलो। One of the essentials of life spheres and is of great importance of life. हाँ हाँ, ये कहाँ छूट गया? ऑल स्पेयर्स छोड़ दिया। देखो Sir था but क्या, sir it was also there. आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। डिसिप्लिन मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, ओके, सो दैट यू मे सी ऑन द बोर्ड। is the very foundation of the society. Second, it is one of the essentials of life and is of great importance in all spheres of life. देखो कहीं कुछ मिस्टेक हुई है शायद, है लाइफ दो बार है या एक बार ही है? शायद एक ही बार है ना, तो उसको यहाँ से हटा देना। काउंट करो सारे वर्ड्स आ गए या नहीं आए, चेक कीजिए।
अच्छा 2 बार आया है एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, 2 बार ही है, ठीक है। ऑलराइट सर थर्ड आ गया। लाइफ विदाउट इट से बना दो ना इसको। Yes, sir. देखो इसको ऐसे बना दो, विदाउट इट लाइफ बिकम्स मिजरेबल एट होम। Sir, it's not Sir, become. life Yeah. will Become. ये मिस्टेक इसकी कह रहे हो ना आप लोग, विदाउट इट लाइफ विल मिजरेबल एट होम, यही है ना? Yes, sir. Sir, हाँ, या कॉमा लगा देना। और एक तो और तरीका इसी सेंटेंस का देखिए, so where is become in this sentence? तो बिकम लगा दो, अगर बिकम है तो ये लो, यानी विदाउट इट लाइफ विल बिकम मिजरेबल एट होम, ये लगा दो। ऐसे भी बन सकता है, देखिए, अरे लाइफ 2 बार लिख दिया मैंने, देखिए लाइफ विल बिकम, एक तो ये है, और दूसरा देखिए लाइफ विल बिकम मिजरेबल एट होम विदाउट इट, ये भी राइट है। राइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंपल है, सिंपल टू सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। हैव यू डन फोर्थ वन और नॉट? Yes, sir. अ चाइल्ड, अ स्टूडेंट, अ सोल्जर मस्ट Sir, ओबे a द child, ऑर्डर्स। comma, a child, वेरी गुड, comma, a student or a soldier must obey the orders. मस्ट ओबे द ऑर्डर, ये हो गया, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको करने हैं। ऑलराइट, नोट करो इनको चारों को। अब टॉपिक डाल लो फटाफट से। ऐसा करना बेटा, बेटर टू लीव 5 to 7 पेजेस, यानी दोनों साइड से काउंट करने पे एक मानना उसको, और कम से कम 5 से 7 पेज छोड़ देना। Are you getting my point? So that I will continue the topic later, because I am quitting that topic and I'll start this topic. Okay, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अभी। okay, sir. समझ गए मैंने क्या कहा है? Yes, जो sir. हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट का, उसको हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि शायद तक देयर आर फैट चांसेस दैट दिस टॉपिक विल बी आस्क्ड, कि एडवर्टाइजमेंट के शायद चांस कम लग रहे हैं, मुझे 0 चांसेस लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रीअरेंजमेंट पूछेंगे,
तो मैं रीअरेंजमेंट कर देता हूँ एक तो, एंड सेकंड टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज डिटर्मिनर्स। ओके, सो आज मैं ये करवा देता हूँ, और आज के बाद कुछ बचेगा थोड़ा बहुत तो फिर मैं कल करवा दूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स विल टेक 2 to 3 days, ठीक है, एंड देन आफ्टर आई विल कंटिन्यू द टॉपिक एडवर्टाइजमेंट, राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Now write Yes. sentence rearrangement, okay? देखिए, द स्पैरो, होम, सिटी, it disappeared, house has seems common, the and that, number one, ठीक है, I mean A, and then B, factors and pollution of native important the responsible
यहाँ भी ये स्लैश है, ध्यान रखना। द रिस्पॉन्सिबल आर लॉस thrust of and B. बनाओ, तुम दोनों को बनाओ फटाफट से। What happened? First done. First done. बताइए कैसे किया है? It seems that the sparrow that disappeared from the city has the common house. As the common House. It seems that the sparrow has disappeared from the city. ठीक है, अगला बनाओ। नेक्स्ट बनाओ। Sir, the important factors responsible are pollution and loss of native herbs and shrubs. वेरी गुड, ये सही है। देखिए, द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स factors responsible for the loss of क्या कह रहे हैं बेटा? द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ नेटिव So, for the नहीं है। है। For the sentence में given नहीं है। सेंटेंस विजिबल नहीं है। एक मिनट रुक जाओ फिर। सर, फोर्थ सेंटेंस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। कौन सा सेंटेंस नहीं दे रखा? For the। Sir, 4 is not given in the question. बोर्ड इज नॉट विजिबल, क्या बात कर रहे हो?
अभी भी नहीं दिख रहा क्या? हाँ, सर आपने जो Yes, sir. रिस्पॉन्सिबल के बाद 4 लिखा है वो क्वेश्चन नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा आप लोग कह क्या रहे हो, दोबारा सर बोलो। आपने जो आंसर लिखा है उसमें आपने लिखा है ना द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सर 4 जो है ना वो क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये है ना, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो फिर ऐसे बना लो, और भी तरीका है कि देखो द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर तो है, आर पॉल्यूशन, एंड लॉस ऑफ नेटिव ट्रक्स। एंड लॉस ऑफ ट्रक्स ऑफ द नेटिव हर्ब। ठीक है ना? अब बना? इसमें एंड कितनी बार आया है? एक बार है, 2 बार है ना? तो ऐसे कर एंड नेटिव हर्ब्स, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एंड आया है ना? और इसको भी देख लो, पहले वाले को भी थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं। देखिए Sir, हाँ जी, it seems that the common house sparrow has disappeared from the city. यही बनेगा। देखिए, इट सीम्स दैट कॉमन हाउस स्पैरो हैज डिसअपियर्ड। ठीक है, फ्रॉम द सिटी। अब इसी से इसको मैच सब कराएंगे ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर, यानी स्पैरो के कॉमन हाउस, सिटी का जो कॉमन हाउस था ना, वहां से उड़ जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ना, वो क्या है? एक तो पॉल्यूशन है, और दूसरे क्या है? लॉस ऑफ श्रब्स एंड नेटिव हर्ब्स, यानी कि श्रब्स और नेटिव हर्ब्स का अवेलेबल नहीं होना इनके लिए, और पॉल्यूशन होना इनके लिए सिटी को छोड़ जाने का मुख्य कारण है। यानी महत्वपूर्ण कारण जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? Pollution and loss of shrubs and native herbs. All fine. Now let us see some more. थोड़े छोटे छोटे देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बने, बड़े ज्यादा हो रहे हैं। The on forest again the industry
oil, then depends. अगला है do get the forest, ये तो आराम से कर सकते हो. From what we product. See the Indian, So what in question? what question? What is बोलिए. the second question? First Second word. है to get the forest from what we product. ओके, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है. The Indian English exploited the farmers. अगला है देखिए pay the had to poor farmers high taxes vary. बनाओ, ये तो इजी, आराम से बना सकते हो. बनाओ, कोशिश करो. पहला बना दो आपके लिए. The oil industry Depends on the forest. अरे वेरी नाइस यशिका, वेरी नाइस. डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट. सेकंड होना यशिका, बहुत इजी है, इनको तो आप आराम से बना सकते हैं. देखिए सिंपल है. व्हाट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स होगा शायद तक. ठीक कर लो इसको. ठीक है, प्रोडक्ट डू बी गेट, या प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ये क्वेश्चन आप ध्यान लगा देते हैं. The English exploited the Indian farmers. Very good. The English exploited the Indian farmers. The poor farmers The poor Farmer said to The poor farmers had to pay
Very high taxes. Very Yes, sir. high taxes. Okay. Chalo, time bhi ho gaya. Okay, bye bye all of you. I will send some of the exercises to do at home. Okay. You do these exercises in your fair notebook, but after leaving 5 to 7 pages in the notebook, so that later on we can complete and we can continue the topic, the advertisement, because it will take minimum 5 to 7 pages. Okay, so you better to leave 7 pages, right? Bye bye all of you.